Okay students, let us find the solution of an integral taken from exercise number 4.1 from our fourth chapter, that is a definite integral. Here we have to integrate x minus x square from 0 to 4 using a process of definite integral as a limit of a sum. Okay students, first of all we have to find h, where h is given as b minus a upon n. Okay, h is equal to b minus a upon n, where b is the upper limit and a is the lower limit of our integral. Here b is 4 and a is 0 upon n. So h is equal to 4 by n, and in this way we get hn is equal to 4. This one is our first step. Means we have to find h. h means b minus a upon n. b क्या है? b is our upper limit and a is the lower limit of integral. So nh is equal to 4. Clear? Since definite integral using limit of a sum process is given as integral from a to b of f of x dx is equal to limit as n tending towards infinite. Limit as n tending towards infinite of summation. Limit of sum summation from r is equal to 1 to n of h into f of a plus rh. Summation from r is equal to 1 to n of h into f of a plus rh. Okay, clear हो गया? Means हमें पहले first of all we have to find f of a plus rh. We have given f of x. What is f of x? Here f of x is equal to x minus x square. This one is our given function f of x, but we have to find f of a plus rh. कैसे फाइंड आउट करेंगे? This gives us f of a plus rh, means replace x by a plus rh. जहाँ पे x है मतलब f of x is equal to x minus x square. x minus x square. Okay, मतलब f of a plus rh is placed on x. So replace x by a plus rh, we get a plus rh minus x means a plus rh to the whole square. Clear हो गया? And when we put a is equal to 0, we get 0 plus rh minus 0 plus rh to the whole square, and this one is equal to rh minus r square h square. rh minus plus into minus 0 plus rh to the whole square minus rh to the whole square means r square h square. So this one is our f of a plus rh. So this is our second step. ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया. क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि व्हेन वी यूज आवर डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये उसका फार्मूला यही है. आप फार्मूला बोल सकते हो या प्रोसेस बोल सकते हो. लिमिट एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू एन ऑफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच. अभी भी आपने एफ ऑफ ए प्लस आर एच डिसाइड कर लिया. ओके, let us find the integral. That is integral है क्या? 0 to 4, a equal to 0, b is equal to 4. f of x फंक्शन क्या है? फंक्शन इज x minus x square dx. ठीक है. लिमिट एज n tending towards infinite, summation from r is equal to 1 to n h तो लिखना पड़ेगा. f ऑफ a प्लस आर एच अभी भी आपने इतना डिसाइड किया, दैट इज आर एच माइनस
आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये रहा आपका क्या रहा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। एफ ऑफ ए प्लस आर एच अभी भी आपने इतना फाइंड आउट किया था। ओके, दिस वन इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n। अब आप एक काम कीजिए, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, वी गेट आर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच क्यूब, आर स्क्वायर एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब। दिस वन कैन बी रिटन एज लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ, समेशन को अंदर भेजिए, मीन्स समेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ आर एच स्क्वायर माइनस समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ आर स्क्वायर एच क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखो, दिस वन इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। देखिए आर एच स्क्वायर तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर सकते हो आप इसको, एच स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हो फ्रॉम द समेशन। ओके, और अंदर क्या बचा, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ r, ये वाला। सिमिलरली आप यहाँ भी लिख सकते हो, दैट इज एच क्यूब एंड समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ तक। ओके, कॉपी कीजिए यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट वी प्रोसीड। क्लियर, सो राइट डाउन। क्लियर, लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ फर्स्ट, दैट इज लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। अब देखिए, इंटू एच स्क्वायर इंटू summation of r from r is equal to 1 to n, that is summation of n natural numbers. The general formula for summation of n natural numbers, that is r, summation of r from r is equal to 1 to n, replace r by 1 plus में क्यों, क्योंकि summation है। ओके, you have discussed, you have learned it in your 11th standard। 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो वहाँ पे आप आपने सीखा है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4, कहाँ तक, 2n तक। समेशन ऑफ r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, r को रिप्लेस करो 1 से, प्लस करो, फिर r इक्वल टू 2, 3, 4, कहाँ तक, n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलता था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे तो मिल गया, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे आ जाइए, दैट इज माइनस एच क्यूब। अब देखिए, समेशन ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, मतलब क्या, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to r स्क्वायर। r के प्लेस पे क्या रखा आपने, 1 का स्क्वायर, r के प्लेस पे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कहाँ तक, n स्क्वायर। तो ये क्या रहा, ये रहा आपका समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको रखिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका पूरा डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड में है। ओके, आप लास्ट ईयर्स आपने सीखा है। क्लियर, पूरा डेरिवेशन, एप्लीकेशन सब कुछ है मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो n इंटू एच क्यूब तो पहले से था, समेशन ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिस वन इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ, देखो अभी यहाँ पे आया n h स्क्वायर n प्लस 1/2 अपॉन 2, कहीं कटबिट नहीं रहा है, ठीक है, अपॉन 2, चलो अपॉन 2 रख दिया मैंने, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या आया NH क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1/6, मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 को यहाँ रखा, 6 को यहाँ पे रखा, क्यों रखा, क्योंकि वो अभी कैंसिलेशन का पॉसिबिलिटी है, कैंसिलेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो NH यहाँ पे आपने डिस्कस किया था, NH इज इक्वल टू लास्ट में NH इज इक्वल टू 4, NH इज इक्वल टू 4, आपने देखिए जरा पेज पलटिए, NH इज इक्वल टू 4 मिला था, सिंस H इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N, B यहाँ पे 4 है, A यहाँ पे 0 है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4, तो 4 माइनस 0 4 अपॉन N, H इज इक्वल टू 4 अपॉन N, देन NH इज इक्वल टू 4। अब आपको NH यूज करना है, NH आपको यूज करना है, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, आपको NH इज इक्वल टू 4, NH इज इक्वल टू 4 यू हैव टू यूज, बट यहाँ पे अगर आप NH यूज करते हो तो बट यहाँ पे H स्क्वायर है, H स्क्वायर है, तो आपको ध्यान देना है, एक मतलब H बचना नहीं चाहिए, H शुड नॉट बी रिमेनिंग, H नहीं बचना चाहिए, ओके, तो आपको क्या करना है, NH इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करना है, बट यहाँ पे H स्क्वायर है, H स्क्वायर है, अगर आप NH को यूज करते हो तो H बच जाएगा, तो एक काम करना है आपको, n से मल्टीप्लाई कीजिए और n से डिवाइड कीजिए, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे बन गया n स्क्वायर और h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हो, यू कैन राइट NH टू द होल स्क्वायर, आ गया समझ में, n से मैंने मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें NH टू द होल स्क्वायर चाहिए, क्यों चाहिए, सिंस वी हैव टू यूज NH इज इक्वल टू 4, बट यहाँ पे NH तो था लेकिन एक H एक्स्ट्रा है, 1H टर्म एक्स्ट्रा, तो उसे भी साथ में लेने के लिए, उसे भी उसको हमें कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंगल n की ज़रूरत थी, तो आपने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, अब बन गया n स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, दैट इज NH टू द होल स्क्वायर, अब बगल में क्या था, बिसाइड से NH स्क्वायर इज n प्लस 1 अपॉन 2n, 2 इंटू 1 2n, चलो यहाँ तक तो काम हो गया, यहाँ पे आइए, अब देखो यहाँ पे NH क्यूब है, NH क्यूब अपॉन 6, अब आप NH, जब आप NH यूज करोगे, NH मतलब क्या, 4, ठीक है, इस 4 को मिटा दीजिए, नहीं तो आप इसको भी कॉपी कर लोगे, ठीक है, जब आप NH4 यूज करोगे तो ये H स्क्वायर इज रिमेनिंग, H स्क्वायर बच रहा है, लेकिन हमें H स्क्वायर को नहीं बचाना है, NH यूज करना है, पूरा 100% पूरा कंबाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए फिर, NH होल क्यूब चाहिए, NH होल क्यूब चाहिए यहाँ पे, तो H क्यूब तो है, मतलब क्या, N क्यूब, एक किसका मतलब है, इसका कंबाइनिंग, इसका बेसिक क्या है, N क्यूब H क्यूब है, N क्यूब H क्यूब मीन्स क्या, NH टू द पावर 3, तो H क्यूब तो है बट N क्यूब नहीं है, क्या फिर है क्या, केवल सिंगल N है, मतलब हमें किसकी ज़रूरत है, वी हैव रिक्वायर्ड N स्क्वायर, अगर n है, n स्क्वायर आ जाता है, देन वी गेट n क्यूब, तो n क्यूब होगा, h क्यूब होगा, मीन्स NH टू द पावर 3 होगा, NH होल क्यूब होगा, और हम NH को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने क्या, आपको करना क्या पड़ा, आपको क्या करना है, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, n स्क्वायर से डिवाइड करना है, अब आपको n स्क्वायर इंटू n क्यूब हो गया और h क्यूब हो गया, मतलब NH पावर 3 हो गया, ओके,
और बच क्या गया, बच गया n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडिंग बाई 6n स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको मिटा दीजिए। ओके, चलिए फिर एन एच क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपने अपने प्लेस पे है, 6n स्क्वायर यहाँ पे आ गया नया, अब इसको रख दीजिए। ओके, लेट अस प्रोसीड। लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। एन एच है क्या, एन एच आपने बोला है कि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 स्क्वायर 16, और यहाँ पे आ गया n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 अपॉन 64 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6n स्क्वायर। समझ रहे हो भाई, 4 रखा, 4 टू द पावर 3, 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। चलिए फिर ये बन गया आपका लिमिट एज n टेंस टू इनफाइनाइट 2 8 जा 16 8। अब देखिए यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, मान लो 3 से काटते हो, 2 से काटते हो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 32 अपॉन 3। ओके, अब देखिए हमें लिमिट यूज करना है, यू हैव टू यूज लिमिट as n tending towards infinite, we know that limit of 1 plus 1 upon n, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि लिमिट ऑफ 1 upon n as n tending towards infinite is equal to 0 होता है। लिमिट ऑफ n as n tending towards infinite is not defined. Limit of n as n tending towards infinite is not defined, but limit of 1 upon n as n tending towards infinite is 0, मतलब defined तो है। तो हमें 1 upon n बनाना है, we have to make 1 upon n। उसके लिए आपको क्या करना है, n प्लस 1 upon n है, 2 को मैंने यूज़ कर लिया, 2 8 जा 16। अब n upon n होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन n होगा। आ गया होगा समझ में, n अपॉन n 1, 1 अपॉन n 1 अपॉन n। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, सिंस वी हैव टू यूज लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन n स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे n स्क्वायर तो था, एक सिंगल n स्क्वायर मीन्स क्या, n और n, तो एक n को यहाँ भेजिए, एक n को यहाँ भेजिए, मतलब एडजस्ट कर दीजिए, n इंटू n स्क्वायर। तो एक सिंगल n को इसके पास इस ब्रैकेट में भेजिए और एक सिंगल n को इसमें डिवाइड कीजिए। ओके, तो n अपॉन n क्या हुआ, 1 एंड 1 अपॉन n, और जो सेकेंड n था इसके पास गया तो क्या दिया उसने, 2 प्लस 1 अपॉन n दिया। आ गया समझ में, 2 प्लस 1 अपॉन 2n अपॉन n 2n अपॉन n इज 2 एंड 1 अपॉन n आप लिख सकते हो ऐसे। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। ठीक है, तो लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ 8 इंटू 2 8 जा 16 n अपॉन n 1 अपॉन n 2 3 जा 2 32 अपॉन 3 एंड n अपॉन n 1 हो गया, 1 अपॉन n, और अपने जो सेकेंड n था 2n अपॉन n किया तो n 2 बच गया, 1 अपॉन n। अब जब आप लिमिट्स को अंदर भेजोगे, ठीक है, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट माइनस लिमिट ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे 8 है, 8 कांस्टेंट है, 8 इंटू 8 बाई n, जो 8 रहने दीजिए, लिमिट ऑफ 1 ही रहेगा, लिमिट ऑफ 1 अपॉन n 0 एज वी डिस्कस्ड। यहाँ हमने सीखा अभी लिमिट ऑफ 1 अपॉन n एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट इज 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 32 अपॉन 3, लिमिट ऑफ 1 लिमिट ऑफ 1 अपॉन n 0, लिमिट ऑफ 2 is 2, limit of 1 upon n 0. So this one is equal to 8 ones are 8 minus 32 upon 3, 2 ones are 2. 2 plus 0, 2, 1 plus 0, 1, 2 ones are 2.
तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आने वाला है, दिस वन इज इक्वल टू 8 माइनस 32 इंटू 2 दैट इज 64 अपॉन 3, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, और 8 अपॉन 1 दैट इज 8 3 ज़ा 24 माइनस 64 अपॉन 3, मेरे ख्याल से माइनस 40 अपॉन 3 आंसर आने वाला है, ये आ गया। ठीक है, सो यह आपका आंसर हुआ, दैट इज माइनस 40, 64 माइनस 24 दैट इज 40, माइनस 40 अपॉन 3। क्लियर हो गया? तो ये तो रहा आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम।